So what are the information that is conveyed by the quantum number? Quantum number gives the information about cell, subcell and orbital. The quantum number that gives the information about the cell, subcell and orbital in which the electron actually resides. Come to the different information conveyed by the quantum numbers. First we have to write all the 4 quantum numbers. एक बार हम फिर से जो है चारों क्वांटम नंबर के नाम लिखेंगे. फर्स्ट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, में तो पता ही चल गया होगा. सेकेंड इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, it is denoted by L. Next one is magnetic quantum number, that is denoted by ML. And last one is spin quantum number. So as you all know that spin quantum number has 2 orientation. One is said to be the clockwise and another is said to be the anti-clockwise. Since it rotates at its own axis, so it has 2 orientation. One is clockwise orientation and another is anti-clockwise orientation. So we can say that in an orbital, it means in a single orbital, in an orbital the maximum number of electron in an orbital, the maximum number of electron that can be filled is 2 only, because if one electron is placed in clockwise direction, the another electron is placed in anti-clockwise direction. So we can say that in an orbital, in a single orbital, the maximum electron is filled is only 2. So the spin quantum number, since it gives the spinning axis of an electron in clockwise and anti-clockwise direction, so clockwise and anti-clockwise direction, that indicate that the maximum number of electron that can be filled in an orbital is only 2. So in all these cases, यदि कि हम चारों को एक साथ बोलें कि what is the information conveyed by all these 4 quantum number, so I can say that an atom consists of cell and the cell have different subcell, and in different subcell there are number of orbital are found and electrons are present in these orbital. So we can say that the electrons are present in orbital and orbital is present in subcell and subcell is present in the cell. So these are the information that is conveyed by the quantum numbers. As you have seen that electrons are present in orbital and orbitals are present in subcell and subcells are present in cell. And where is cell is present? And cell is present in an atom. So an atom consists of different cell and cell consists of different subcell and subcell consists of different orbitals and different orbitals are filled with electron. So the modern quantum mechanical model gives us about the position of the electron that is present in an atom. This information that is conveyed by the quantum numbers. अब मैं एक लास्ट टेबल बनाऊंगा
जिससे आप बड़े आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। अगेन वी हैव टू राइट द n l। अब हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। हियर आई विल राइट द सेल, सब सेल, कौन से सब सेल होंगे। देन राइट हियर m and yes, ठीक है। आफ्टर m we obtained the number of orbital। यहाँ पे हम we can also write here the number of orbital भी लिख सकते हैं यहाँ पर, number of orbital, then spin quantum number, yes, and at last we can calculate the total number of electron, total number of electron। Now here if the value of n is 1, n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा, सबको पता है, चल गया होगा अब तक। इट्स वैल्यू विल बी 0। सबसेल कौन सा होगा, सबसेल आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा सबसेल है, 0 for s and it is present in first energy level, so it is 1s। m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक वैल्यू है m का, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 1। नाउ कम टू हियर spin, s stand for spin quantum number। there will be two value of spin, one is प्लस हाफ एंड अनदर इज माइनस हाफ। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इस ऑर्बिटल में, देखिए one is clockwise direction and another electron can be filled in the anti-clockwise direction। So total number of electron that present in this case is 2। It means in first energy level the maximum electron field is 2। Now come to the second energy level। Here write 2, L has two value 0 and 1। फिर से वही केस, 0 stand for S and since it is present in second energy level so you have to write 2s। m का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 0। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, एक ही है यहाँ पर, सो यू हैव टू राइट ओनली वन ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन in this orbital, one is in clockwise direction and another is in anti-clockwise direction। So the total number of electron that can be filled in second energy level is 2, यानी कि 2s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कम टू द वन वैल्यू, 1 के लिए डिजिग्नेशन p है, किस एनर्जी लेवल में है, सेकेंड एनर्जी लेवल में है, तो आप इसको लिख दीजिएगा 2p। अब यहाँ पर m का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। m के कितने वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर, यू हैव टू राइट -1 0 +1, 3 वैल्यू है। अब देखिए कितने ऑर्बिटल हो गए, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया 0, एक +1 हो गया। इट मीन्स देयर विल बी द 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। अब इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस ऑर्बिटल में 0 में कितने भर सकते हैं, अगेन द सेम थिंग, वन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें भी कितने भर सकते हैं, इस वाले ऑर्बिटल में, इसमें भी वही होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हो गया, काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। So the total number of electron that can be filled in
2p subshell is 6. Total number of electrons that can be filled in 2p subshell is 6. अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन सेकेंड एनर्जी लेवल कितने हो जाएगा? काउंट कर लीजिए, बहुत आसान है. 6 + 2 8 हो जाएगा. 6 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में भरे जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 8. ठीक है. सो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फिल्ड इन द सेकेंड एनर्जी लेवल इज. नाउ कम टू द थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू यदि 3 हो गया, इन दैट केस हम क्या करेंगे? उसमें देखते हैं कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं. थर्ड में इसको रिरेज कर देता हूँ मैं. इट विल टेक टाइम, कोई बात नहीं. तब तक आप लोग अपनी कॉपी में कोशिश करिए इस तरह बनाने का टेबल. डू द सेम टेबल इन योर नोटबुक. नाउ हियर एन का वैल्यू 3 हो गया. एन का वैल्यू 3 हो गया तो एल का कितना वैल्यू होगा? एल का वैल्यू भी 3 ही होगा, लेकिन 0 1 2 ये वैल्यू हो जाएगा. 0 के लिए अगेन यस, किस एनर्जी लेवल में? थर्ड एनर्जी लेवल में. यू हैव टू राइट 3 यस. सिमिलरली 1 स्टैंड फॉर P and this is present in third energy level, so you have to write simply 3p. इसको समझ लेना है कि 3p कैसे आता है, 2s कैसे आता है, 2p क्या आता है. It means if the second energy level the L has value 2, so 2 stand for D. और ये किस एनर्जी लेवल में है? थर्ड एनर्जी लेवल में. तो सिंपली यू हैव टू राइट द 3d हो गया. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आते हैं. एम का वैल्यू कितना हो गया इसमें? 0. ठीक. नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें? 1. पी आ गया. पी में कितने वैल्यू होंगे? -1 0 +1. अच्छा, एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का 2 ही हो सकता है. वन इज प्लस हाफ, अनदर इज माइनस हाफ. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए. अब यहाँ पे देखिए, ये देयर आर 3 ऑर्बिटल्स. यहाँ पे कितने हो गए? -0 +1. सो देयर विल बी द 3 ऑर्बिटल एंड ईच ऑर्बिटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिटन लाइक दिस वन. वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदर इज एंटी क्लॉकवाइज. प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ. ठीक है. काउंट कर लीजिए कितने होगा टोटल? 6 हो गया. अब डी के लिए लिख लेते हैं. एल का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे -2 -1 0 +1 +2. कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट कर लीजिए? 1, यानी 1 2 3 4 5. कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए? 5. सो यू हैव टू राइट हियर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 5. एंड इन ईच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? केस वही रहेगा, यही रहेगा. प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ एंड लास्ट वन इज प्लस हाफ माइनस हाफ. सो काउंट कर लीजिए कितने हो गए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is present in D subshell will be 10. Now count the total number of electron that is present in third energy level. कितने हो गए थर्ड एनर्जी लेवल में? थर्ड एनर्जी लेवल में 10 6 2 कितने हो गए? 18. So the total number of electron that is present in third energy level is 18. In the same way, you can also write the number of electron that is present in the fourth energy level. आप लोग फोर्थ एनर्जी लेवल का खुद से बनाइएगा. ठीक है. ये आपके लिए एक तरह का जो है होमवर्क हो गया. नाउ
अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन फ्रॉम दीज क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर से क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। L tells us about the n, that is principal quantum number, tells us about the cell, the energy level in which electron is present. L tells us about the subcell present subcell in an atom. the number the number of subcell that is present in a particular energy level. M tells us about the orbital and S tells us about the spinning axis of the electron. तो कह सकते हैं कि N से हमको नंबर ऑफ एनर्जी लेवल का पता चलता है, L से हमको नंबर ऑफ सबसेल का पता चलता है, और M से हमको क्या पता चलता है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सबसेल में. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड दैट इज प्रेजेंट इन द क्वांटम नंबर्स. इसको आप लोग कायदे से पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और एक चीज़ और बताना था, इफ़ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ n, यदि आपको सिर्फ n का वैल्यू दे दिया गया और पूछ लिया गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए गिवन वैल्यू ऑफ n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी पार्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में. तो सिंपली एक चीज़ आपको याद रखना, यू हैव टू लर्न ओनली दिस फार्मूला 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इफ़ n हैज़ 1 वैल्यू, ठीक है, n का वैल्यू यदि 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, देयर विल बी द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन दिस केस. इफ़ द वैल्यू ऑफ n इज़ 2, n का वैल्यू 2 होता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इज 8. सो if the value of n is 3, the number of electron, the maximum number of electron can be written as 2 into 3 square. When you calculate it, it comes to be 18. So the maximum number of electron that can be present in third cell is 18. You can take one more example, that if the value of n is 4, so the maximum number of electron that is present in fourth principal quantum number can be written like this one, that is 32. So you can easily calculate the number of electron present for a particular principal quantum number by this formula. इस फार्मूले से बड़े आसानी से आप जो है किसी भी क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका पता लगा सकते हैं. We can conclude that the maximum number of orbital in a cell is n², यानी कि the number of orbital present in a particular cell that can be represented as n², and the maximum number of electron, the maximum number of electron present in a cell is 2n². इन दोनों फार्मूले के आधार पर आप बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, या कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर में. ऑन नोइंग द वैल्यू ऑफ सेल, सपोज आई एम राइटिंग हियर cell is K, L, M and N, ठीक है. What is the designation for N for this cell?
इन सेल के लिए क्या डिजिग्नेशन यूज होता है ये सबको पता ही है, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज सेल नंबर, आई एम राइटिंग हियर सेल नंबर K stand for first cell, L stand for second cell, M stand for third cell and N stand for fourth cell, चौथे सेल के लिए। नाउ हाउ मेनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन K सेल, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं K सेल में, या L सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, या M सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। आप फार्मूले के आधार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल K सेल में, L सेल में, M सेल में या L सेल में हो सकते हैं। सो वी हैव टू राइट हियर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पर एक और हम लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दिस सेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फार्मूला क्या होता है, यू ऑल नो दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल है फार्मूला दिस वन। सो इन फर्स्ट सेल द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट इज प्रेजेंट इज 1. In second cell the total number of orbital that is present is n स्क्वायर है फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 2 जा 4। सिमिलरली ये थर्ड सेल है, ठीक है, थर्ड सेल फार्मूला क्या होगा 9। सिमिलरली हियर इट इज 16, ठीक है। सो इन फर्स्ट सेल देयर विल बी ओनली 1 ऑर्बिटल, इन सेकेंड सेल देयर विल बी 4 ऑर्बिटल, in the third cell there will be 9 orbital and in fourth cell there will be 16 orbital. Now come to the total number of electron present in this cell. इन सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला क्या है, दैट इज 2n स्क्वायर, ये फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, इस फार्मूले पर रख दें तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फार्मूला रखिए 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, और इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 32, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, जैसे एक ऑर्बिटल यहाँ पर लिखा है, 4 ऑर्बिटल है, 9 ऑर्बिटल है, 16 ऑर्बिटल है। इन वन ऑर्बिटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इट इज ओनली 2। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एकोमोडेट होते हैं। तो इसको जस्ट दुगना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको दुगना कर दीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फिल्ड इन दिस ऑर्बिटल इज 2। सिंस देयर विल बी 4 ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 8। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट बिकम्स द 8 एंड सो ऑन। इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का भी पता लगा लेते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता लगा लेते हैं। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स एंड दीज आर अबाउट द डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये सब जो है डिफरेंट क्वांटम नंबर्स में है। डिफरेंट क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, द क्वांटम नंबर स्पेसिफाई the position of an electron around the nucleus in cell, subcell and orbital, ठीक है। It specify the position of an electron around the nucleus, ठीक है। So this is all about the different quantum numbers.